Today we are going to learn about adverbs. Adverbs means something added to the word. An adverb is a word that adds something to the meaning of a word. Okay, like the traveler walked briskly. Traveler walked. Walked is verb. How he walked? Briskly. बहुत तेजी से चलता. Okay. Now there are 6 kinds of adverbs. Adverbs of manner. उसका तरीका बताते हैं, कोई भी काम जो करते हैं कैसे किया. Walk fast. वो बहुत तेज चला. Work quietly. कैसे काम किया उसने? बहुत शांत तरीके से काम किया. Now adverbs of place. Adverbs of place जैसे कि कहाँ पे वो काम हुआ है. Okay, sat here. यहाँ बैठे थे. कहाँ पे? Here. Here is the place. Adverb of place. Went downstairs. कहाँ गए वो? नीचे चले गए. ठीक है, नीचे मतलब सीढ़ियों से उतर के नीचे चले गए. Went downstairs. Adverbs of time. Came early. जल्दी आ गए. Okay. Now play today. कब प्ले किया? आज ही प्ले किया. आज ही खेला. Okay. Now adverbs of frequency. Frequency means how many times the action take place. Okay. Visited twice. कितने बार विजिट किया? 2 बार. Twice. 2 बार. Came usually. वो आए usually मतलब habitually मतलब रेगुलर बेसिस पे आते हैं. Usually वो आते हैं. ठीक है. आए वो usually. Adverbs of degree. Know completely. कैसे जाते हैं? उसको अच्छे से आता है पूरी तरह से. Completely. Completely is a adverb of degree. Now totally full. कैसे full था वो? Totally full. Okay. तो full is adverbs of degree. Now interrogative adverbs. Interrogative means when we ask something, है ना? तो यहाँ पे question है. तो when the question word जो है वो interrogative adverbs. When did the train arrive? कब ट्रेन पहुंचा? ठीक है. When is the interrogative adverb. Why is the train late? ट्रेन लेट क्यों आए? क्यों? तो why is an interrogative adverb. Okay. Now formation of adverbs. Adverb is formed from adjectives by adding ly at the end. Okay. Like quick. Quick is adjective. Now ly is added, then it becomes an adverb. Quick, quickly. Beautiful, beautifully. Easy, easily. See, easy में y हटाकर in place of y, I is added. Okay, I-L-Y. Easy, easily. Now second category, the exactly the same as adjectives. Adjective क्या है? A late lunch. कैसा lunch है? Late lunch. उसका adverb बनाएंगे तो I work late at the office. मैंने कैसे काम किया? देर तक काम किया ऑफिस में. A long journey. Long journey. जब बहुत लंबा सफर था. ठीक है. Now I cannot stay very long. मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता. A fast driver. The children ran fast. बच्चे बहुत तेज दौड़े. ठीक है. तो here we use the adjective as it is without any change as an adverb. Okay. But we use this along with the verb. Okay. Work late. Stay long. Ran fast. So it becomes an adverb as it is like adjective. Okay, without any change. Some more words are there. We can use it as adverb like early, hard, long, short, fast, straight, daily. Okay. Now sometimes when we add ly to an adjective, we get an adverb with quite different meaning. Totally उसका meaning change हो जाता है. जैसे हम एक एडवर्ब के साथ ly ऐड करते हैं तो उसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है. लेट अस एग्जाम्पल सम एग्जांपल्स. लाइक शी वर्क्स हार्ड. वो बहुत मेहनत करती है. ठीक है. नाउ शी हार्डली वर्क्स. तो यहाँ पे हार्ड के साथ ly ऐड करके शी हार्डली वर्क्स मतलब वो बहुत कम काम करती है. मतलब शी डजंट वर्क एट ऑल. हार्डली वर्क्स. बहुत रेयर केस में ही वो काम करती है. ठीक है. Now he went direct to his father. वो बिल्कुल स्ट्रेट उसके पापा के पास ही चला गया. सीधा पापा के पास ही चला गया. ठीक है.
ly ऐड करेंगे तो उसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाएगा. डॉक्टर विल सी यू डायरेक्टली. सी यू डायरेक्टली मीन स्ट्रेट नहीं होगा. यहाँ पे क्या है, डॉक्टर तुमसे बहुत जल्द ही मिलेंगे. ठीक है, द डॉक्टर विल सी यू डायरेक्टली. नाउ ही गॉट लेट, उसको देर हो गई. वी हैव नॉट मेट हिम लेटली, हम लोग रिसेंटली मिले नहीं. लेटली का मतलब क्या है, एल वाई लगाने से उसका मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो गया. लेटली मीन्स रिसेंटली, अभी हाल ही में हम लोग मिले ही नहीं. ठीक है, तो ये याद रखना. हार्ड हार्डली, डायरेक्ट डायरेक्टली, लेट लेटली. तो अगर एल वाई ऐड करते हैं तो टोटली उसका मीनिंग चेंज. कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स. Adverbs of one syllable form their comparative by adding er and their superlatives by adding est to the positive. Okay, like positive adverb is fast. What is the comparative form? Faster. Er is added. Okay, faster than fastest. Superlative degree is fastest. Short, shorter, shortest. Now adverbs ending in ly form their comparative by adding more and adding and their superlatives by adding most. Like bravely, more bravely, most bravely. Okay. Now, but in the exception case, early, it is also ends with ly, but its comparative is earlier and superlative is earliest. Okay. Some adverbs forms the degrees of comparison in an irregular way. Like far. Far is used in two different meanings: position and for distance. Okay. If it is in a for position, then further, furthest. And far is for distance. Then far, farther, farthest. Ill और badly, उसका क्या होगा comparative form of adverb? Worst. Worse or worst? Sorry, it is worse. W-O-R-S-E. Worse, then worst. Late, later, last. Late, later, last. Much, more, most. Well, better, best. Some adverbs forms the degrees of comparison in an irregular way. Like far. Far shows the distance. So comparative form is further and superlative form is furthest. Then when we are talking about the distance, then far, farther, farthest. Ill or badly का क्या होगा? Worse, worst. Ill, worse, worst. Badly, worse, worst. Late, later, last. Much, more, most. Well, better, best. Now, position of adverbs. Adverbs of manner, place and time are placed after the verb if the verb is intransitive and after the object if the verb is transitive. Okay. The thief ran fast. The thief ran fast. तो verb के बाद आ रहा है तो the thief ran fast. It rained heavily. It rained heavily. So these are intransitive sentences. Okay. तो इधर क्या है, वर्ब के बाद तुरंत बाद में हम एडवर्ब, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स यूज कर रहे हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर यूज कर रहे हैं. ठीक है, द इट रेन हेवी. और अगर ट्रांसिटिव है तो वो ऑब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे. लाइक द आर्टिस्ट प्लेड हर पार्ट एफिशिएंटली. आर्टिस्ट प्लेड हर पार्ट. आर्टिस्ट प्लेड व्हाट? हर पार्ट. दिस इज ऑब्जेक्ट. ओके, ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो ये क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है. तो द आर्टिस्ट प्लेड हर पार्ट एफिशिएंटली. अगेन इट इज ट्रांसिटिव वर्ब. सी, वी टुक दिस डिसीजन यस्टरडे. ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम. ये एडवर्ब ऑफ मैनर है. ठीक है, तो वी टुक दिस डिसीजन यस्टरडे. नाउ फॉर एम्फेसिस
adverbs of time may also be placed in the beginning of the sentence. Like what sentence is this? We can discuss one sentence over here. We went to the museum yesterday. When? We went to the museum yesterday. कल गए थे हम म्यूजियम. अब इसी सेंटेंस को अगर yesterday अगर हम at the beginning में यूज करते हैं तो हम किसको एम्फेसिस दे रहे हैं? एडवर्ब्स ऑफ टाइम को एम्फेसिस दे रहे हैं. हम कब गए थे? yesterday. Yesterday we went to the museum. Okay. Now adverbs of frequency: always, sometimes, often, etc. Adverbs of degree: almost, nearly, quite, just, etc. So the adverb of frequency, the adverbs of degree, sometimes our adverbs of manner are placed after the verb if the verb is, are, am, was verb. Okay, like she is, then adverb of frequency we use. She is often absent from the school. Okay, and we were quite in time for the match. तो ये कौन सा है? adverb of quite क्या है? adverb of degree. We were quite in time for the match. Okay, तो वो कब यूज करते हैं? ये verb के बाद. कौन सा verb है ये? auxiliary verb. is, were. Okay. Now second option क्या है? Between the subject and the verb consist of one word. Subject के बीच में and subject और verb के बीच में एक ही word आता है, तब हम कौन सा यूज करते हैं? Adverbs of degree यूज करते हैं. Like Sandhya never forgot to send me New Year greetings. His uncle nearly lost his life in the war. Okay, तो ये जो है adverb of degree है. Sandhya never forgot to send the New Year greetings. ये कहाँ पे आ रहा है? Subject संध्या और verb forgot, इन दोनों के बीच में एक ही word आता है, तो वो adverb of degree आता है, तो हम यहाँ पे उसके बीच में यूज करते हैं. ठीक है. संध्या never forgot to send me the New Year greetings. Now his uncle, ये subject है और verb क्या है? lost. उन दोनों के बीच में आ रहा है ये. Okay, his uncle nearly lost his life in the war. Okay, now third, after the first word, if the verb consists of more than one word, then हम क्या यूज करेंगे? ये डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री यूज करेंगे. लाइक वी शुड नेवर डिसोबे द रूल्स. कहाँ पे यूज करेंगे? सब्जेक्ट के बाद. ओके, आफ्टर द फर्स्ट वर्ड, if the verb consists of more than one word, okay, should disobey. तो should disobey ये more than two words आ गया, उसके बीच में यूज करेंगे. ठीक है. तो हम कहाँ पे यूज करेंगे? आफ्टर द फर्स्ट वर्ड, if the verb consists of more than one word, तो उसके बीच में हम यूज करेंगे we should never disobey the rules. The postman just delivered the mail. The postman just delivered the mail. Sorry, the postman had just delivered the mail. यहाँ पे had भी आना चाहिए. The postman had just delivered the mail. The postman had just delivered the mail. Before the verbs have to and used to, हम जो दो verb यूज करते हैं have to and used to, उससे पहले भी हम ये यूज करते हैं. लाइक वी ऑफन हैड टू वर्क ऑन संडेज. हमें अधिकतर संडेज के दिन भी काम करना पड़ता है. वी ऑफन हैड टू वर्क ऑन संडेज. ही ऑलवेज यूज्ड टू विजिट मी ड्यूरिंग समर वेकेशन. मतलब हमेशा वो कब मुझे विजिट करते हैं? ड्यूरिंग समर वेकेशंस. ओके. When an adverb modifies an adjective or another adverb, it is placed before the adjective or adverb. Okay, like the bride looked very beautiful. Bride looked very beautiful. So beautiful is adjective. Adjective से पहले very लगा दिया. Okay, so it's an adverb. Okay, they agreed to the plan quite happily. So adverbs
adverb से पहले लगा दिया ये plan quite happy. They agreed to the plan quite happy. Now the adverb enough is always placed after the word it modifies. जो उस word को जो modify करना है उसके बाद enough always placed after the word it modifies. जिसको modify करना है उसके साथ ही इसको लगाते हैं, तो उसके तुरंत बाद ही हम enough लिखते हैं. Okay. Here she is intelligent enough to understand the problem. She is intelligent enough. क्या कैसी है वो? मतलब अच्छा खासा इंटेलिजेंट है, ठीक है. इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. तो किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? इंटेलिजेंट को मॉडिफाई करना. When an adverb modifies an adjective or another adverb, it is placed before the adjective or adverb. ठीक है. तो जो भी हमें मॉडिफाई करना है, कोई एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना है या अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करना है, या उससे पहले हम वो एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज करते हैं. ओके. लाइक द ब्राइड लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल. ब्राइड लुक्ड हाउ ब्यूटीफुल? वेरी ब्यूटीफुल. तो वेरी इज यूज हियर ब्यूटीफुल से पहले. ओके. दे एग्रीड टू द प्लान क्वाइट हैप्पीली. तो एग्रीड टू द प्लान इन विच मैनर? क्वाइट हैप्पी. Okay. Now the adverb enough is always placed after the word it modifies. Then कोई भी word को हमें modify करना है उससे बाद ही हम enough लगाते हैं, ठीक है. That she is intelligent enough to understand the problem. मतलब वो इतनी intelligent थी कि problem उसको समझ में आता है. तो she is intelligent enough. तो किसको modify करें? Intelligent को modify करना है, तो उसके तुरंत बाद ही हमने enough लगा दिया. She is intelligent enough to understand the problem. Now the word only should be placed immediately before the word it modifies. अब यहाँ पे enough तो बाद में लगाते हैं, लेकिन only जो है उससे पहले लगाते हैं. जो भी word को modify करना है उससे तुरंत पहले हम only लगाएं. Like only he promised to give me books. किसने promise किया था? उस लड़के ने. Only he promised to give me books. कोई उसी ने promise किया था, किसी और ने नहीं. He only promised to give me books. उसने सिर्फ प्रॉमिस क्या किया था? प्रॉमिस ही किया था कि बुक्स देंगे, लेकिन दिया नहीं. ओके. ही प्रॉमिस टू गिव मी ओनली बुक्स. उसने सिर्फ बुक्स देने की वादा किया था और कुछ नहीं. आई होप यू अंडरस्टूड. When there are two or more adverbs after a verb, it's object. Okay. The normal order is when there are two or more adverbs, then हमारे सीक्वेंस क्या होना चाहिए? पहले adverb of manner, then adverb of place, then adverb of time. For example, she sang sweetly in the concert last evening. She sang. How she sang? Sweetly. Okay. Where? Place in the concert. And what's the time? Last evening. Okay. तो ये सीक्वेंस होना चाहिए. पहले manner आएगा, फिर place आएगा, फिर time आएगा. Okay. The train arrived at the platform at 6 p.m. The train arrived at the platform at 6 p.m. तो पहले at the platform place आएगा, फिर time आएगा. अगर हम ऐसे लिखेंगे the train arrived at 6 p.m. at the platform, it doesn't make any good sense. Okay. तो इसी ऑर्डर में हमें adverb को यूज कर लेना चाहिए. Now correct use of some adverbs. Okay. Fairly, rather. Both fairly and rather mean moderately. Okay, बहुत कम मतलब ठीक. Medium. Fairly, favorable adjectives and adverbs. Fairly यूज करते हैं favorable adjectives और adverbs के लिए, like clever, intelligent, wise, etc. Okay. But rather is for unfavorable ones, like foolish, ugly, etc. Okay. This child is fairly clever for his age. ये चाइल्ड जो है वो फेयरली क्लेवर, मॉडरेटली क्लेवर है, ठीक ठाक क्लेवर है. ठीक है. ही इज फेयरली रिच बट हिज अंकल इज रैदर पुअर. और उसकी वो जो लड़का है वो फेयरली रिच है, मतलब ठीक ठीक है, मतलब उसकी हालत, लेकिन उसके अंकल जो है रैदर पुअर, बहुत ज्यादा ही गरीब है. ओके. सम वर्ड्स लाइक हॉट, कोल्ड, फास्ट, स्लो, हाई, लो, these suggest the idea of approval rather that of disapproval. मतलब इसके साथ अगर फेयरली लगते हैं तो इसका मतलब है आइडिया ऑफ अप्रूवल, हमें पसंद है, एग्री विद दैट. ओके. फेयरली हॉट,
फेयरली हॉट या फेयरली कोल्ड, फेयरली फास्ट, फेयरली स्लो, फेयरली हाई, फेयरली लो, तो ये अप्रूवल को दिखाते हैं. अब रैदर हॉट, रैदर कोल्ड, रैदर फास्ट, रैदर स्लो, रैदर हाई, रैदर लो, वो डिसअप्रूवल को मतलब पसंद नहीं है. ठीक है. दिस टी इज फेयरली हॉट, मतलब दिस टी इज फेयरली हॉट मीन्स या इट्स गुड. ओके, इट्स ओके विद मी, आई कैन ड्रिंक इट. This tea is rather hot, मतलब I am not able to drink this tea because it is hot, मतलब इतना गर्म मुझे पसंद नहीं, तो वो डिसअप्रूवल को दिखा है. The tea is fairly hot means हाँ, ये इतना गर्म जो चाय है वो मैं आराम से पी सकता हूँ. यहाँ पे जो है rather hot बोलते हैं तो वो मुझे इतना पसंद नहीं है, इतना गर्म चाय मुझे पसंद नहीं है, इसका मतलब ये होता है. ओके. Very or much. We use very with adjectives and adverbs in the positive degree. Much with the comparative degree. Okay. तो जो adjective और adverbs जो positive degree में उसके साथ हम very use करेंगे और much जो है वो हम comparative degree के साथ ही use करेंगे. Like she is very intelligent girl. तो intelligent जो है उसका positive degree में है. ठीक है. तो उसके साथ हम very use करेंगे. She is a very intelligent girl. She ran very fast. फास्ट, ये भी पॉजिटिव डिग्री में है तो वेरी फास्ट. टुडे शी इज लुकिंग मच वीकर देन यूजुअल. वीकर ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो उसके साथ हम मच यूज करेंगे. टुडे शी इज लुकिंग मच वीकर देन यूजुअल, तो आज वो बहुत थकी हुई सी लग रही है, ज्यादा थकी हुई सी लग रही है और दिनों के मुकाबले. वेरी इज यूज विद प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड मच विद पास्ट पार्टिसिपल्स. ओके. प्रेजेंट पार्टिसिपल्स पता है ना आपको, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ड्स. ओके. लाइक चार्मिंग. और पास्ट पार्टिसिपल क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड. लाइक प्रेज्ड, लाफ्ड, जंप्ड, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड. ओके. तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड के साथ हम मच लगाएंगे और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम वेरी यूज करेंगे. शी इज वेरी चार्मिंग. हर डांसिंग वॉज मच प्रेज्ड. We do not use very with words like afraid. Very afraid नहीं बोलते हम. ठीक है. Very obliged भी नहीं बोलेंगे, very alike भी नहीं बोलेंगे. We use much with that. तो उसकी जगह पे हम very की जगह पे क्या यूज करेंगे, much. Much afraid, much obliged, much alike. Okay. I'm much obliged to you for your help. मैं तुमसे ज्यादा थैंकफुल हूँ, तुमने जो मेरी मदद की उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ तुमसे. ठीक है. तुम्हारा आभारी हूँ. The two are much alike. ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, है ना. much alike, उनके काफी similarities है. The two are much alike. To suggest excess of some kind, more than what is desirable, natural or proper. मतलब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा. It should not used instead of very or much. Very या much के जगह पे हम to use नहीं कर सकते, because इसका एक मतलब नेगेटिव वो आ जाता है. तो इट इज टू हॉट टुडे नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं, इट इज वेरी हॉट टुडे. इट इज टू गुड नहीं बोलते, वी हैव टू से इट इज वेरी गुड. ओके. वो याद रखना. इट इज टू गुड नहीं बोलना, वो रॉन्ग होता है. इट इज टू हॉट टुडे भी नहीं बोलते, इट इज वेरी हॉट टुडे. ओके. टू जनरली हैज अ नेगेटिव सेंस एंड इज देन फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव. टू हमेशा नेगेटिव होता है और उसके साथ एक इन्फिनेटिव फॉलो होना चाहिए. जैसे टू वॉक, इन्फिनेटिव क्या होता है, टू वॉक. टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव. ओके. आई एम टू टायर्ड टू वॉक फर्दर. मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं और नहीं चल सकती. ठीक है. आई एम टू टायर्ड टू वॉक फर्दर. मैं एक स्टेप भी आगे नहीं चल सकती, इतना मैं थक चुकी हूँ. आई एम टू टायर्ड टू वॉक फर्दर, मतलब हद से ज्यादा मैं थकी हुई हूँ. However, it is too correct to say that she talks too much. अब हम बोलते हैं किसी बच्चे के लिए she talks too much, मतलब कुछ वो ज्यादा ही बोलती है, मतलब वो जितना डिजायरेबल है उससे ज्यादा बोलती है, तो वो हम बोल सकते हैं कि she talks too much. He takes things too seriously. वो चीजों को बहुत सीरियसली लेता है, बहुत से ज्यादा सीरियसली लेता है. तो हम यहाँ पे टू यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज बोलते हैं पॉजिटिव सेंस में बोलते हैं तो हम टू नहीं यूज करते, वो नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं टू को. ठीक है.
इनफ। इनफ मीन्स सफिशिएंट, मतलब ज्यादा। ओके, उसको हम हमेशा पॉजिटिव सेंस में लिखते हैं। इट इज प्लेस्ड आफ्टर द एडजेक्टिव और एडवर्ब। वो एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद ही उसको इनफ को हम यूज करते हैं, बट बिफोर अ नाउन, लेकिन नाउन से पहले यूज होगा। ठीक है। शी इज ओल्ड इनफ टू गो अलोन। शी इज ओल्ड इनफ टू गो अलोन, मतलब वो इतनी तो बड़ी है कि वो अकेले जा सकती है। शी रैन फास्ट इनफ टू ओवरटेक मी। इसने इतना ज्यादा तेज भागा कि मुझे ओवरटेक कर पाए। ठीक है। शी फास्ट इनफ टू ओवरटेक मी, मतलब वो इतना तेज भागती है कि मुझे हरा सकती है। देयर इज इन to suggest excess of some kind more than what is desirable, natural or proper. It should not be used instead of very or much. मतलब very और much की जगह पे हम to यूज नहीं करेंगे। to का मतलब है कि बहुत ज्यादा। ओके, तो it is very hot today, हम ये नहीं बोल सकते it is too hot today, वो रॉन्ग होता है। it is too good नहीं बोलते, कुछ लोग बोलते हैं, बट इट इज रॉन्ग यूसेज ऑफ इंग्लिश। हमें क्या बोलना चाहिए? इट इज वेरी गुड या इट इज वेरी हॉट टुडे। ओके, टू जनरली हैज अ नेगेटिव सेंस एंड इज देन फॉलोड बाय एन इंफिनिटिव। व्हाट इज इंफिनिटिव? टू along with the first form of the verb, है ना? To walk, to write, to go, that is called infinitive. तो to जब हम यूज करते सेंटेंस में, उसके बाद to का होना जरूरी है। ओके, I am too tired to walk further. I am too tired to walk further means I am very tired. Now I cannot walk further. मतलब मैं और एक भी स्टेप आगे नहीं चल सकती, उतना मैं थकी हुई हूँ। Okay? However, it is correct to say she talks too much. मतलब ये तो ठीक है, हम बोल सकते हैं she talks too much. वो बहुत ज्यादा ही बोलती है, मतलब जितना डिजायरेबल है उससे ज्यादा बोलती है, तो इट इज इन नेगेटिव सेंस, बट हम बोल सकते हैं। ही टेक्स थिंग्स टू सीरियसली, तो वो बहुत ज्यादा ही चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेता है, वो भी अच्छी आदत नहीं है ना? हर एक चीज को हमें मॉडरेटली लेना चाहिए। इनफ मीन्स सफिशिएंट, इट टेक्स इन अ पॉजिटिव सेंस एंड इट इज प्लेस्ड आफ्टर द एडजेक्टिव और एडवर्ब। वो एडवर्ब या एडजेक्टिव के बाद ही उसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इट शुड बी बिफोर और नाउन, नाउन से पहले यूज होगा और एडजेक्टिव और एडवर्ब से के बाद ही यूज होगा। ठीक है। शी इज ओल्ड इनफ टू गो अलोन। शी इज ओल्ड इनफ टू गो अलोन मतलब इतनी तो वो बड़ी है कि वो अपने आप जा सकती है। शी रैन फास्ट इनफ टू ओवरटेक मी, मतलब वो इतना तेज भागती है कि वो मुझे ओवरटेक कर लेगी, मुझे हरा सकती है। There is enough food for both of us. There is enough food for both of us मतलब वहां पे ये जो खाना है हमारे पास वो हम दोनों के लिए बहुत ज्यादा है। Now, quiet. The adjectives that do not have comparative and superlative degree. Quiet means completely, entirely या fully. It does not mean very. Okay? तो quiet का भी यूज करते हैं हम जब वो कुछ पूरी तरह से completely या entirely या fully जब ऐसी मीनिंग आता है तब हम quiet यूज करते हैं। और वो का भी यूज करते हैं जिसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, जो एडजेक्टिव्स का। ठीक है। शी इज क्वाइट राइट, शी इज क्वाइट राइट फुली, दैट मीन्स शी इज फुली राइट। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल मीन्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, मतलब ये क्वाइट इम्पॉसिबल है लेकिन हमने कर दिखाया। ओके। विद अदर एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स क्वाइट मीन्स टू अ फेयरली ग्रेट एक्सटेंट, मतलब ठीक ठाक है, अ ग्रेटर एक्सटेंट दैन एवरेज, तो एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है। शी सिंग्स क्वाइट वेल, मतलब ठीक ठीक गाती है। ही सिंग्स क्वाइट वेल मीन्स वो ठीक ठीक गाता है। शी स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट फ्लुएंटली, हाँ वो एक इंग्लिश जो है एक एवरेज मैनर में अच्छा बोलती है।